Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes and we'll continue with the chapter The 100 Dresses part 1 which is written by Alboster. Okay, so till now we have read that the main character of a story, that is Wanda Pentronsky, she was mocked by Peggy and Maddie. So Peggy and Maddie, they were best friends, and Wanda Pentronsky used to live, a Polish girl used to live in Bogan Heights, which is a slum area. Okay, so she was actually very poor, and she used to wear the same dress, the fade color blue dress, every day, and she used to lie every day that she was having 100 dresses in her wardrobe, all lying together in a way. So all such things used to lie, and Peggy, and especially Peggy, not Maddie we can say, but Maddie used to support Peggy. Okay, so Peggy, she used to mock her, she used to tease Wanda Pentronsky regarding her dresses, that how many dresses are in her closet, or how many caps are there, and so and so. So Wanda was the only girl who used to come and go from the school, come to the school and go from the school quite lonely, because she was not having any good friend. Okay, and Maddie, actually he did not want Peggy to tease her because she was also poor. But what were the causes, that why did not she stop Peggy from mocking Wanda Pentronsky? Because she thought that, उसको क्या लगता था मैडी को, कि अगर पैगी जो है वो अगर उसको बोलेगी कि तुम वांडा को मत चढ़ाया कर उसके नाम को लेकर या उसकी ड्रेसेस को लेकर, तो पैगी, हो सकता है कि मैडी भी गरीब है तो पैगी भी उसे चढ़ाना स्टार्ट कर देगी, रिलेटेड टू हर ड्रेसेस, रिलेटेड टू हर स्टेटस इन द सोसाइटी। तो इसीलिए मैडी को बहुत ज़्यादा कभी घबरा जाती थी और वो पैगी को मना नहीं कर पाती। वैसे जो है पैगी जो है अपनी बताती भी है कि शी इज़ वेरी गुड गर्ल, लेकिन उसको वांडा को चढ़ाना जो है वो इसलिए वो गलत नहीं मानती क्योंकि वांडा हमेशा झूठ बोलती है कि शी इज़ हैविंग 100 ड्रेसेस इन अ क्लोसेट, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सो उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वाई डू वांडा एक्चुअली लाइज। ओके, then Maddie and Peggy actually they used to tease Wanda every day when she used to come to school. But nowadays Wanda was not coming to school, she was absent in the school. Now what was the cause? Let's see the next part of the chapter. Today, even though they had late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. तो आज वो लोग स्कूल के लिए, पैगी और मैडी दोनों लेट थे, लेकिन आज वो बड़ी खुश थी मैडी, क्योंकि उसे आज लग रहा था कि आज कम से कम वांडा को मजाक नहीं उड़ाएंगे। She worked her arithmetic problems absent-mindedly, और वो अपने मन ही मन क्या कर रही थी, अपने absent mindedly का क्या मतलब होगा यहाँ पे, that means carelessly, अपने मन ही मन में, दिमाग में carelessly क्या कर रही थी, arithmetic problems यानी maths की जो problems है वो sort out कर रही थी। 8 times 8, let's see, so इस तरह से कुछ mathematics problem solve कर रही थी। She wished she had the nerve to write Peggy a note. अब उसकी ये इच्छा थी कि वो एक पैगी को एक नोट लिखे, एक लेटर टाइप लिखे, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." तो उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो अपनी फ्रेंड जो है पैगी, जो कि बहुत क्लास में पसंद की जाती है, जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पैगी को ये कह दे डायरेक्ट फेस पे कि तुम वांडा को चढ़ाना बंद करो। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक नोट लिखेगी पैगी को और उसे ये बताएगी, इतना साहस करेगी कि वांडा को ड्रेसेस के लिए चढ़ाना बंद कर दिया जाए, उसे ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, बंद कर दिया जाए। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. अपने मैथ्स के जो उसके प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करने के बाद she decided that she would write a note to
her friend. Suddenly she paused and shuddered. एकदम से पहले तो क्या हुआ कि वो लिखते लिखते रुक गई और एकदम से उसका हाथ जो है वो क्या होने लग गया, शेक करने लग गया. शर्डर मतलब क्या होता है, शेक करना, या जिसे हम बोलते हैं कांपना. ठीक है, तो उसका हाथ कांपने लगा. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. अब उसका हाथ क्यों कांपने लगा, क्योंकि उसे अपने आप की याद आने लगी कि अगर हो सकता है उसने पैगी को वांडा के लिए कुछ बोला तो कहीं पैगी उससे ही मैडी को ही ना चढ़ाना स्टार्ट कर दे, टीज करना स्टार्ट कर दे. तो उसे ऐसा इमेजिन हुआ दैट मैडी वॉज अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड हर फ्रेंड्स टू मॉक आउट, है ना. तो इसीलिए उसने फिर लिखना बंद कर दिया. Peggy might ask her where she got the dress that she had on. अब उसे क्या लग रहा था कि पैगी जो है वो मैडी से ये पूछ सकती है कि तुम्हारे पास जो ड्रेसेस है वो कहाँ से आई. And Maddie would have to say it was one of the Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with न्यू ट्रिमिंग्स, सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकग्नाइज इट, है ना. तो अगर उसने पैगी ने उसे मैडी को चढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो वो मैडी से क्या पूछेगी कि तुम्हारी ये ड्रेस कहाँ से आई, और मैडी को बड़ी शर्मिंदगी के साथ, एम्बैरसमेंट के साथ ये कहना पड़ेगा कि ये पैगी की ही ड्रेस है, क्योंकि मैडी पैगी के ही उतरे हुए कपड़े पहनती थी. ठीक है, तो पैगी की ही ड्रेस है जिसको उसकी मदर ने डिस्ग्वाइस मतलब क्या होता है, छिपाना किसी चीज़ को, है ना. तो उसकी मदर ने ट्राई करा छिपाने का विद न्यू ट्रिमिंग्स. ट्रिमिंग्स क्या होती है, किसी चीज़ को रिपेयर मतलब करना, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ का सजावट करना, ऑर्नामेंटिंग करना. ठीक है, तो उसने कुछ नई सजावट करके, कुछ गोटा पत्ती टाइप लगा के, और उसी जो उसकी ड्रेस है उसको कुछ नया लुक देने की कोशिश की थी, जिससे कि स्कूल में और उसकी क्लासरूम में नंबर 13 में कोई ये ना पहचान सके कि ये पैगी का ड्रेस है. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. सिर्फ पैगी ही ये डिसाइड कर सकती थी कि वो वांडा का मजाक नहीं उड़ाएगी, यानी वो अपने आप से उसको ये डिसाइड करना ज़रूरी था. उसे उसको रोकने की किसी की हिम्मत नहीं थी. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. अब मैडी ने अपने जो ब्लॉन्ड हेयर्स, जो चमकीले से बाल हैं, छोटे से बाल जो हैं उसके चमकीले सुनहरे बाल, उनमें हाथ फेरा, और उसके बाद उसने ये सोचा कि मतलब ये जो गंदे थॉट्स हैं ये उसके दिमाग से निकल जाए, मतलब वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है. What difference did it make? Slowly Maddie tore it into bits the note she had started. So उसने बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो वांडा को चढ़ाती भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे खुद का डर था. तो स्लोली मैडी ने क्या करा, जो उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया था, जो नोट लिखना स्टार्ट किया था, शी टोर दैट नोट इनटू पीसेस, और उसने उसको फेंक दिया. She was Peggy's best friend. मैडी जो थी वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम. और पैगी जो थी वो पूरे कमरे में, यानी रूम नंबर 13 में, उसके जो क्लासरूम था उसमें बेस्ट लाइक्ड गर्ल थी, यानी सबकी पसंदीदा लड़की थी. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. उसके दिमाग में आया कि पैगी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जो सच में गलत हो. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boken Heights and stood along in the schoolyard. और यहाँ वांडा के बारे में क्या था, उसको कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन तो था नहीं वांडा को लेकर. मैडी को भी, पैगी उसकी फ्रेंड थी, लेकिन वांडा का कभी उसने बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया उसे, ना वो उसकी फ्रेंड थी. सिर्फ उसे ये बुरा लगता था कि वांडा को न चढ़ाया जाए, बिकॉज वो भी खुद भी पुअर थी, इसलिए उसे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लगता था उसके लिए. अदरवाइज वांडा सिर्फ एक लड़की थी जो बॉकेन हाइट से आती थी और अकेले स्कूल यार्ड में रहती थी. शी scarcely ever said anything to anybody. और वो इतनी डरी हुई रहती थी वांडा की कभी उसने शायद स्कूल में कभी किसी को कुछ कहा भी नहीं. The only time she talked was in schoolyard about 100 dresses. और सिर्फ वो किस चीज़ के बारे में बात करती थी, जब उसे पूछा जाता कि उसके क्लोसेट में कितनी ड्रेसेस हैं, तब वो झूठ बोलती थी कि she was having 100 dresses in her closet and all lined in a
सिंगल वे। तो ये सारी मतलब वांडा ऐसे किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ वो अपना मुंह कब खोलती थी जब उसे 100 ड्रेसेस के बारे में बताना होता था। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स। सो मैडी को एक चीज़ रिमेंबर हुई, उसे याद आई कि जब उसने मतलब उसकी कोई ड्रेस थी पेल ब्लू कलर की और जिस पे कुछ कलर्ड सजावट करी हुई थी। And she remembered another that was brilliant jungle green with a rat sash। और एक मैडी को कौन सा ड्रेस याद आया, उसका वांडा का पेल ब्लू कलर का ड्रेस, ठीक है, और उस पर कुछ सजावट की हुई, ट्रिमिंग्स कलरिंग से कुछ अलग अलग कलर से कोई सजावट की गई है। एक उसको कौन सा ड्रेस याद आया, उसको ड्रेस याद आया जिसमें कि उसने ग्रीन कलर, जंगल ग्रीन कलर का वो ड्रेस है और उसने मतलब वो पहना हुआ है विद अ रेड सैश। सैश मतलब क्या होगा, स्कार्फ, है ना, यानी ग्रीन कलर का ड्रेस है, उस पर रेड कलर का स्कार्फ पहना हुआ था उसने। किसने, वांडा ने। ये वांडा की ड्रेस की बात हो रही है, तो मैडी को वो याद आ रही है उसकी ड्रेसेस। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री दैट द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमिरेशन। तो झूठी मतलब कहते हैं ना तारीफ़ करना, है ना, तो जो एडमायर क्या होता है, किसी की तारीफ़ करना। सो झूठी तारीफ़ करते हुए गर्ल्स ने उस समय जब वांडा ये पहन के आई थी ना ड्रेस, ग्रीन कलर का ड्रेस, उसके ऊपर रेड कलर का स्कार्फ, तो झूठी तारीफ़ करते हुए वहाँ उस समय लड़कियों ने क्या बोला था, उसकी स्कूल गर्ल्स ने वांडा को, कि तुम आज क्रिसमस ट्री की तरह दिख रही हो। Thinking about Wanda and her dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing coloring contest। अब जब वो उसकी ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी, वांडा की 100 ड्रेसेस के बारे में, एकदम से उसको याद आता है कि उसके क्लास में या स्कूल में एक कंपटीशन है, ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट है, उसके बारे में वो सोचने लगी कि ये कॉन्टेस्ट कौन जीतने वाला है। For girls, this contest consists of designing dresses। गर्ल्स के लिए तो ये था कि उनको कुछ बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस डिज़ाइन करनी है, मतलब पेपर पे ड्रेसेस डिज़ाइन करनी है, उनको कलरिंग करनी है। सो दैट वाज ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। तो गर्ल्स का क्या टॉपिक था, द थिंग वाज दैट दे हैव टू डिज़ाइन ड्रेसेस। एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और बॉयज़ के लिए क्या था कि उनको मोटर बोट्स डिज़ाइन करनी थी। Probably Peggy would win the girls' medal। उसे लगता था कि पैगी ही जीतेगी। पैगी drew better than anyone else in the room। तो उसके क्लास में पैगी सबसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करती थी। At least that's what everybody thought। और ये बात हर कोई सोचता था, मतलब उसके क्लासरूम में पैगी सबकी बहुत पसंदीदा लड़की थी, सबको ये लगता था कि she is best, हर काम में पैगी जो है वो नंबर 1 है। She could copy a picture in a magazine or some film stars had so that you could almost tell who it was। पैगी जो है वो बिल्कुल मैगजीन से सेम एज इट इज़ किसी भी स्टार यानी किसी भी जो फिल्म पर्सनालिटी है, जो फेमस पर्सनालिटी है, उसका ऐसा का ऐसा पिक्चर, उसका जो फेस कट है वो कॉपी कर लेती थी और आप इजीली पहचान सकते हो कि ये कौन सा फिल्म स्टार है। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। सो मैगी को बिल्कुल श्योरिटी थी कि पैगी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, सो पैगी वुड विन दैट कॉन्टेस्ट। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। और कल जो था मतलब टीचर जो है वो विनर को अनाउंस करने वाली थी। देन दे वुड नो, और उसके बाद तो उन्हें फाइनली पता चल ही जाएगा कि आखिर कौन जीतने वाला है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मीन्स शावरिंग, रेन, जो हम कहते हैं ना कि बारिश शावरिंग होती है ना, जैसे स्प्रिंग सीजन में होता है तो हल्की बौछार होना जिसे हम बोलते हैं, दैट इज ड्रिजलिंग। ओके, हैवी रेनफॉल नहीं होता, ड्रिजलिंग मीन्स बौछार होना, शावरिंग होना। ओके, द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। तो क्योंकि हल्की बौछार हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, तो मैडी और पैगी के अम्ब्रेला के नीचे जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रही हैं। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेंट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। तो जनरली वो ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर में वांडा का वेट करा करती थी, तो ऐसे मौसम में उसका वेट नहीं किया जाता था। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे
अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगन हाइट्स। तो ये जो ओलिवर स्ट्रीट थी वो बॉगन हाइट्स से काफ़ी मतलब ऑन द वे ही थी, और ये रेल ट्रैक्स भी थी, अंडर द रेल ट्रैक्स के नीचे और थोड़ा हिल के ऊपर इस वाली साइड पे ये एरिया था। तो वहाँ वो बॉगन हाइट से लीड करती थी, इसलिए वो लोग, क्योंकि वांडा बॉगन हाइट से आती थी, तो ये लोग ओलिवर स्ट्रीट पे उसका वेट करते थे कि कब वांडा आएगी और कब उसका मजाक उड़ाएंगे हम लोग। Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. So मैगी और पैडी आज बिल्कुल चांस नहीं ले रही थी, कोई वेट नहीं कर रही थी वांडा का, बिकॉज उन्हें आज रिजल्ट पता करना था कि ड्राइंग कंपटीशन में who won the contest. Do you know Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. अब वो क्या बातें कर रही है, पैगी बोल रही है कि तुम्हें पता है मिस मैसन यानी उनकी जो टीचर है आज वो विनर्स का नाम अनाउंस करने वाली है। ओह आई होप सो द मिनट विल गेट इन। ओ मुझे ऐसा लगता है सेड मैडी ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। उसने कहा हाँ वो पल ज़रूर आएगा और पैगी तुम्हें पता है तुम ही जीतोगी। होप सो सेड पैगी ईगरली। ईगरली मीन्स क्या है, बड़ी क्यूरियोसिटी से, बड़ी मतलब उसे जल्दी से, है ना, एज सून एज पॉसिबल, तो उसे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि देखो क्या होता है। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. So जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर हुए वैसे ही क्या हुआ, एकदम से थोड़े पल के लिए रुके एंड दे स्टार्टेड गैस्पिंग। गैस्पिंग क्या होता है, गैस्पिंग मतलब होता है पेंटेड, पैंट भी इसका नाम होता है जिसे हम हाफना बोलते हैं, ठीक है। सो द न्यू वर्ड ऑफ गैस्पिंग इज पैंटिंग, ठीक है, हाफना। There were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. So, जैसे ही वो रुकी उन्होंने क्या देखा कि पूरे रूम में क्या है, बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, और देव ऑन एवरी लेज, लेज क्या होता है, शेल्फ, जैसे हम जो विंडोज़ के अंदर जो पार्टीशंस करते हैं ना, दैट इज़ शेल्फ, है ना। तो वहाँ पर हर एक लेज पे, हर एक शेल्फ पे पेंटिंग्स लगी हुई थी। विंडोज़ सील पे यानी विंडो की एज, खिड़की की जो दहलीज होती है, चौखट होती है, उस पर बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने लगा रखी थी। एंड डैजलिंग, डैजलिंग मतलब क्या होता है, स्प्लेंडेड, है ना, भव्य, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स थे वहाँ पर, बहुत ब्रिलियंट कलर्स थे। एंड लैविश, लैविश मतलब बहुत ग्रैंड डिज़ाइंस थी, यानी बहुत ही ज़्यादा भव्य अलग अलग डिज़ाइंस की ड्रेसेस, बिकॉज कॉन्टेस्ट क्या था, डिज़ाइनिंग करने का ड्रेसेस को, तो बहुत सुंदर सुंदर ब्राइट कलर्स में अच्छी अच्छी डिज़ाइंस की उनको पिक्चर्स दिख रही थी वहाँ पे, उनकी ड्राइंग्स लगा रखी थी पूरे रूम में। ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, और सारी जो थी वो रैपिंग पेपर की शीट पे बनाई गई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम ऑल लाइंड अप, कम से कम 100 ड्रेसेस होंगी और सब एक साथ लगी हुई थी। देयर मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट। सो ये सारी ड्राइंग्स किसके लिए होंगी, कॉन्टेस्ट के लिए होंगी, पूरी क्लास को डेकोरेट कर रखा था। दे वर, और ऑब्वियसली दे वर द ड्राइंग्स ऑफ द कॉन्टेस्ट ओनली। Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. अब सब जैसे जैसे क्लासरूम में एंटर हो रहे हैं, सब एक तरह से शॉर्टली रुक रहे हैं, पूरे क्लासरूम को देख रहे हैं और धीरे धीरे बातें करते हुए एडमायर कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो कितनी सुंदर ड्रेसेस यहाँ पर बनाई गई हैं, कितनी सुंदर ड्राइंग्स बनाई गई हैं। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. और जैसे ही सारे बच्चे जो है क्लास में assemble हो गए, इकट्ठे हो गए, तो मिस मैसन जो है उन्होंने अनाउंस करा विनर का नाम। जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज। तो बॉयज की तरफ से कौन विनर था, जैक बेगल्स। शी सेड एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर और वॉज ऑन एग्जिबिशन इन रूम 12। और उसकी जो पेंटिंग थी आउटबोर्ड मोटर की, जैक की, वो रूम नंबर 12 में लगी हुई थी। और ये कौन सा रूम था, रूम नंबर 13। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़, और जितने भी बॉयज़ की स्केचेस थी वो सारे मोटर बोट्स की रूम नंबर 12 में एग्जिबिशन लगी हुई थी। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड, although just 1 or 2 sketches were submitted by most,
One girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. फिर उन्होंने मिस मैसन ने बोला लड़कियों की जब हम बात करते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 लड़की ने अपना मतलब सबमिट किया ड्राइंग, लेकिन रूम नंबर 13 को उस लड़की पर प्राउड होना चाहिए जिसने कि 100 ऑफ ड्रेसेस डिज़ाइन की, सारी बिल्कुल अलग और सारी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. और उनके ओपिनियन में मिस मैसन के ओपिनियन में जो जजेस हैं, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्थली ऑफ विनिंग द प्राइज. मतलब कोई भी अगर उसका एक भी ड्रेस, मतलब 100 ऑफ ड्रेसेस उस बच्ची ने बनाई थी, अगर एक भी ड्रेस उसका चुन ले तो भी वही विनर होगी. I am very happy to say that Wanda Pentronsky is the winner of Girls Medal. So who was the winner? Instead of Peggy, Wanda Pentronsky was the winner, the first prize winner of the drawing competition. Okay, so this is it for today, and we'll discuss the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.